नेशनल काउंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पहले ऑनलाइन सेमाही CPD प्रोग्राम में तमाम शुरका को खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपने इस प्रोग्राम की 11वीं क्लास अटेंड करेंगे। हस्ब साबिक सबसे पहले प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के इब्तदाई कलिमात होंगे। उसके बाद डॉक्टर फरियाल राव की प्रेजेंटेशंस होंगी 2 लेक्चर्स की, और उसके बाद इलेबोरेट करेंगे उन लेक्चर्स को मोहतरम जनाब हकीम डॉक्टर जवाद इशफाक साहब, प्रिंसिपल अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर। उसके बाद इख्तितामी कलिमात होंगे मोहतरम जनाब प्रोफेसर हकीम अब्दुल करीम नासिर साहब, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब। मैं ये अर्ज कर दूं कि आज अपनी गुफ्तगू में मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब जो हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उस हवाले से और शुरका की अटेंडेंस के हवाले से कुछ रियायती पैकेज का ऐलान करेंगे। तो आप सब आप तवज्जो से सुनिएगा और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर उसके हवाले से जो अमल दरामद है उसकी डिटेल में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर कल आपके गोशे गुजार कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं इब्तदाई कलिमात के लिए मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim, honorable participants of the CPD program, esteemed guests and fellow practitioners. Assalamu alaikum. It is with great humility and enthusiasm that I speak to you in this crucial continuing professional development, CPD program, under the auspices of National Council for TIB. This momentous occasion marks a significant step forward in our commitment to excellence and continuous learning in the field of traditional and complementary medicine. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to Hakim Zulfikar Malik, Chairman Information and Publications NCT, Dr. Asif Iqbal, Chairman Pharmacopoeia NCT, Tabiba Rabia Mahmood and all the members of National Council for TIB for their tireless efforts in shaping and guiding this initiative. Your dedication to advancing TIB and ensuring its integration into modern healthcare system is truly commendable. As we embark on this CPD journey, it is essential to recognize the evolving landscape of healthcare globally. Traditional and complementary medicine, including TIB, has gained recognition for its holistic approach to health and well-being. Our responsibility as practitioners is not only to uphold the principles and practices of TIB, but also to adopt and innovate in response to emerging health challenges. Ladies and gentlemen, the CPD program represents a commitment to lifelong learning and professional growth. Through a diverse range of workshops, seminars, and training sessions, we aim to enhance our knowledge, skills, and competencies. It is an opportunity for us to stay abreast of the latest research, advancement, and best practices in TIB and related fields. Ladies and gentlemen, furthermore, this program underscores the importance of collaboration and knowledge sharing with our commitment with our community. By fostering a culture of collaboration, we can leverage collective wisdom and experience to improve patient outcomes and promote public health. I encourage each one of you to actively participate in this CPD program, to engage in meaningful discussion and to embrace new ideas and perspectives. Let us seize this opportunity to elevate the standard of TIB practice, to inspire future generation of practitioners and to contribute positively to the health and well-being of our communities. In closing, I express my sincere appreciation to all the stakeholders, partners and supporters who have contributed to the development of this CPD program. Together, we can make a lasting impact and uphold the
principles of TIB for the betterment of society. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Assalamu alaikum. माजरत हमें एक बार फिर जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ, क्योंकि अपनी गुफ्तगू में वो जो अहम कुछ ऐलानात करने थे वो शायद वो करना भूल गए हैं। तो हम एक बार फिर सदर साहब की तरफ चलते हैं और बगौर उन ऐलानात को सुनते हैं जो अटेंडेंस के हवाले से और ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से थे। तो एक बार फिर प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की तरफ चलते हैं। Ladies and gentlemen, I am coming again with the special announcement regarding attendance relaxation for CPD program, participation and peer passing marks for the online exam. I would like to emphasize the importance of fostering inclusivity and supporting continuous learning among participants. Therefore, we propose the following guidelines. Attendance relaxation, we understand that participants may face unavoidable circumstances that prevent them from attending all sessions of the CPD program. To accommodate such situation, we will allow a certain percentage of absence, for example up to 50%, without affecting participants' eligibility for certification. However, participants are encouraged to attend as many sessions as possible to maximize their learning experience. Second, passing marks for online exam. The passing marks for the online exam will be set at 33%. This threshold is intended to ensure that participants demonstrate a basic understanding of the topic covered into the CPD program. Third one, additional chance for participants who do not achieve the passing marks of 33% in the online exam will be given one more opportunity to retake the exam. This additional chance aims to support participants in consolidating their knowledge and improving their performance. By implementing these measures, we aim to create a supportive and inclusive learning environment that empowers participants to enhance their professional competence in TIB and related field. Thank you very much. Hello, Assalamualaikum student. My name is Dr. Faryal Rao and today I am going to give you a presentation on choosing a significance test. एक ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए आप ये डिटरमाइन कर सकें कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं, उसके लिए आपको बेसिकली एक्सेप्ट करना है, उसे रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस जो आई है उसे एक्सेप्ट करना है या उसे रिजेक्ट करना है। तो इसके लिए एक सिग्निफिकेंट टेस्ट का होना ज़रूरी है जिसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हैं कि वेदर आपके पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या जिन्हें आप है रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहली प्रेजेंटेशन स्लाइड की तरफ, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हवाले से जब हम बात करते हैं उसकी डिटर्मिनेशन किस तरह से होती है। रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के रिव्यू, आपको रिव्यू करना होगा। आपका ऑब्जेक्टिव बेसिकली किस पर्पस के लिए आप ये स्टडी कर रहे हैं। स्टडी टाइप्स, जैसे कि स्टडी टाइप्स डिफरेंट तरह की टाइप होती हैं, क्रॉस होती हैं, ओपन लेबल्ड होती हैं, क्लोज लेबल्ड होती हैं, ओपन स्टडी होती है, क्लोज स्टडी होती है, एंड वेरिएबल्स और किस तरह के वेरिएबल्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल्स की स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, चूजिंग अ सिग्निफिकेंस टेस्ट, और फिर इन तमाम की बेसिस पे आप एक प्रॉपर टेस्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, वाई शुड वी यूज़ सिग्निफिकेंस टेस्ट। हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट को यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है। इसकी तीन वजूहत है। या तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट रिज़ल्ट आया है, जो हमारे स्टडी का रिज़ल्ट आया है वो बेसिकली या डिफरेंस आ रहा है दो ग्रुप्स के दरमियान। जैसा कि नॉर्मली हमने बताया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइकवाइज आप दो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एक इनोवेटर प्रोडक्ट है, एक आपकी टेस्ट प्रोडक्ट है, और आप ये देखना चाहते हैं कि आपने दो ग्रुप्स के अंदर एक ही पॉपुलेशन से आपने दो ग्रुप्स ड्रॉ किए और उन दोनों का आपने एक
एक एक मेडिसिन दे दी, एक ग्रुप को आपने मेडिसिन इनोवेटर दे दी और दूसरे ग्रुप को आपने मेडिसिन टेस्ट दे दी। नाउ यू वांट टू सी दैट वेदर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन दोनों का जो भी डिफरेंस नज़र आ रहा है वो ट्रू डिफरेंस है, यानी कि अगर एक आपको लगता है कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और दूसरी आपको लगता है ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, या एक आपको लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दूसरी आपको इतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आती। पहली वाली से आपको लगता है कि कुछ ही घंटों में, फॉर एग्जांपल पेन किलर है, बहुत जल्दी से पेन किलर आपका काम करता है, एंड देन द पेशेंट गेट रिड ऑफ द पेन ऑन वेरी अर्लीस्ट, एंड इन द अदर केस आपको लगता है कि पेशेंट के दर्द में फ़र्क नहीं पड़ा, या बहुत देर से फ़र्क पड़ा, या डोज बढ़ाने पे फ़र्क पड़ा। इन तमाम चीज़ों को जज करने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि क्या ये जो डिफरेंस है वो ट्रू डिफरेंस है, ड्यू टू चांस, किसी चांस की वजह से है, कोई भी वजह हो सकती है, या बायसनेस है। चांस ये हो सकता है कि आपने जो पॉपुलेशन सेलेक्ट की इनोवेटर प्रोडक्ट के लिए वो आपने यंग सेलेक्ट कर ली, या ऐसे लोग सेलेक्ट कर लिए जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी दे देते हैं, जिनका पेन पोटेंशियल कम होता है, पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, जो पेन ज़्यादा तक बर्दाश्त कर सकते हैं, या कोई और फैक्टर हो सकता है एसोफाइजी, या कोई और मेडिसिन वो नहीं ले रहे, जबकि आपने एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट शामिल कर लिए, या तो वो किसी और मेडिसिन में, या वो किसी वजह से वो मेडिसिन उनके अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करती, या एज फैक्टर है, या सेक्स फैक्टर है, वो वॉट एवर द रीज़न। सो देयर कुड बी एनी रीज़न, एज, जेंडर और डिज़ीज़ एंड अदर मेडिसिन इंटरेक्शन, जिसकी वजह से जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव ना रही हो, हालांकि वो इफ़ेक्टिव हो, बट ड्यू टू सम अदर रीज़न वो इतनी इफ़ेक्टिव ना हो। तो आपको देखना पड़ता है कि कहीं ये बाय चांस तो नहीं है, और दूसरा बायसनेस के इधर आपने सिलेक्शन करते हुए अपनी टेस्ट प्रोडक्ट में अच्छे ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल्स ले लिए हों एज फैक्टर के हिसाब से, दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से, या इनोवेटर प्रोडक्ट में आपके पास इत्तेफाकन ऐसे पेशेंट्स आ गए हों जो कि हेल्दी हों, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट नहीं आ पा रहा हो। नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट पे। अ सिग्निफिकेंट टेस्ट एस्टिमेट द लाइकलीहुड दैट एन ऑब्जर्व स्टडी रिजल्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप इज़ ड्यू टू अ चांस। सिग्निफिकेंट टेस्ट जो है हमें एस्टिमेट देता है ये बताने के लिए कि वेदर जो हमने स्टडी की है बिटवीन टू ग्रुप्स के अंदर अगर हमारे जो स्टडी के रिजल्ट्स आए हैं वो किसी चांस की वजह से आए हैं, या अ सिग्निफिकेंट टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर अ स्टडी रिजल्ट विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन अ सैम्पल कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट विच एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल एंड ड्रॉन। अगेन सिग्निफिकेंट टेस्ट वेदर हम ये कहते हैं कि हम उस सिग्निफिकेंट टेस्ट के ज़रिए या टेस्ट के ज़रिए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं उस सैम्पल्स के अंदर, उन पर्टिकुलर सैम्पल के अंदर वो क्या पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1,00,000 की पॉपुलेशन में से फॉर एग्ज़ाम्पल 2,000, 3,000 या 10,000 लोगों को एज अ सैम्पल कलेक्ट किया और उनके ऊपर आपने मेडिसिन की स्टडी की, उनको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आपने 5,000 पेशेंट को एक मेडिसिन दी और बाकी के 5,000 पेशेंट को दूसरी मेडिसिन दी। नाउ यू नीड टू सी कि वेदर जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं स्टडी के 5,000 पेशेंट्स के अंदर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किसी डिज़ीज़ की वजह से या किसी भी वजह से, तो क्या अगर जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो इस तरह के हैं या वो इस तरह के रिज़ल्ट्स हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन यू हैव टू कीप इन माइंड सो मैनी फैक्टर्स, एज, हेल्थ एंड अदर ऑल्सो फैक्टर्स, फीमेल जेंडर, मेल जेंडर्स, एज, हेल्थ, मेडिसिन, डिजीज़ लाइक किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, क्या उन्हें स्टडी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टडी में उन्हें शामिल करने हैं तो क्या उसकी वजह से उनकी मेडिसिन जिससे वो ले रहे हैं उसके रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट आएगा। इन सब चीज़ों को देखना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउ अ सिग्निफिकेंट टेस्ट वर्क। टेस्ट किस तरह से काम करता है। सपोज़ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। आपने 2 ग्रुप्स के दरमियान एक स्टडी करवाई और आपके सामने एक डिफरेंस आपको नज़र आता है। अब आप ये देखेंगे कि इज़ दिस ऑब्जर्वेशनल आ रियल एसोसिएशन, क्या इस ऑब्जर्वेशन का जो आपको 2 ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन नज़र आती है क्या इसका रियल एसोसिएशन है या ये सैम्पलिंग वेरिएशन के दौरान किसी बाय चांस हो गया या बायसनेस हो गई है उसकी वजह से ये डिफरेंस आया है।
ये जानना, यू डिटरमाइन हाउ लाइकली इट इज़ दैट योर रिजल्ट अकर्ड बाय चांस, कितना परसेंट चांस है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो इट इज़ ड्यू टू द चांस है या सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से। इफ़ इट इज़ अनलाइकली लेस देन 5%, अगर लेस देन 5% है डैट योर रिजल्ट अकर्ड बाय चांस, अगर लेस देन 5% आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट, आपके जो टेस्ट रिज़ल्ट है, आपके जो टेस्ट रिज़ल्ट के दरमियान डिफरेंसेस आए हैं वो बाय चांस है, तो आप यू रिजेक्ट द चांस एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्ट दैट इट इज़ अ रियल डिफरेंस और एसोसिएशन। तो फिर आप उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हैं और उसे रियल डिफरेंस मानते हैं और ये मानते हैं कि आपस में इन दो चीज़ों की एसोसिएशन है। लाइकवाइज अगर लेस देन 5% आपको लगता है कि आपका टेस्ट बाय चांस है, लेकिन अगर आपको लगता है 5% से ज़्यादा आपको लगता है कि आपका टेस्ट रिज़ल्ट बाय चांस आया है, तो आप उसे रियल डिफरेंस कंक्लूड नहीं करेंगे। आप उसके अंदर दो चीज़ों के अंदर एसोसिएशन को शो नहीं करता। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 5% है तो फिर आप ये कहेंगे कि आपका जो एसोसिएशन है दो चीज़ों के दरमियान वो रियली एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाय चांस है और आप उस एसोसिएशन इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अजम्पशन दैट इन टोटल पॉपुलेशन नो रियल डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी कि अगर नो रियल डिफरेंस एग्जिस्ट है उसे आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट। नो डिफरेंस इन द इंसिडेंस ऑफ मीजल्स, मीजल्स के इंसिडेंस में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आता उन लोगों के दरमियान जो वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं। इसी तरह से मेल्स डू नॉट स्मोक मोर देन फीमेल्स, मेल्स जो हैं वो औरतों से ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करते। नो एसोसिएशन बिटवीन द फैमिलीज़ इनकम के दरमियान और माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन के दरमियान आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है। द लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रिजल्ट बाय चांसेस एक्सप्रेस एट पी वैल्यू, पी वैल्यू के ज़रिए हम प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड ऑफ अ चांस रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जाएंगे चूजिंग अ सिग्निफिकेंट टेस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हैं, टेस्ट के नेम्स हैं। अभी हम सिर्फ उन टेस्ट के नेम पढ़ेंगे, अभी फर्दर उनके बारे में हम अगली क्लासेस में या अगली प्रेजेंटेशन में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी हम सिग्निफिकेंट टेस्ट को किस तरह से डिफरेंस ग्रुप के दरमियान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नॉमिनल डेटा है, स्मॉल सैंपल है या लार्ज सैंपल है और अनपेयर्ड ऑब्जर्वेशन हैं या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, अगर अनपेयर्ड ऑब्जर्वेशन है तो आप फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं और काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर हम साइन टेस्ट को और NCMR काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। ओरिजिनल डेटा अगर हो दो ग्रुप के दरमियान या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप के दरमियान तो हम विल्कॉक्सन 2 सैम्पल टेस्ट, मैन विक्टनी यू टेस्ट यूज़ करते हैं। क्रॉसरी वैलिस वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हो तो विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, फ्रेडम 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करते हैं। ये सारे टेस्ट वो हैं जिनके बारे में आपसे मेरी इस प्रेजेंटेशन के आखिर में यही आपका एक असाइनमेंट है कि इन तमाम टेस्ट की आपको डेफिनेशंस निकाल के लानी है। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द डेफिनेशन और फिर हम इसे फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डेटा 2 ग्रुप्स हो या ग्रेटर दैन 2 ग्रुप्स हो, टी टेस्ट होता है, टी टेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी भी डेफिनेशन आप दोबारा से देखिएगा और एफ टेस्ट कर सकते हैं या पेयर टी टेस्ट कर सकते हैं। अगर मेजरिंग, अगर आपको दो चीज़ों, दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखनी है, लाइक के स्मोकिंग मेल्स में ज़्यादा होती है, स्मोकिंग एक वेरिएबल है, मेल दूसरा वेरिएबल है, या स्मोकिंग फीमेल में ज़्यादा होती है तो स्मोकिंग एक वेरिएबल है, फीमेल दूसरा वेरिएबल है, दो ग्रुप्स हैं, मेल ग्रुप है और फीमेल ग्रुप है, उन दोनों के दरमियान एक वेरिएबल कांस्टेंट है, डेट इज़ स्मोकिंग। अब अगर आप कहते हैं कि मेल्स के अंदर ज़्यादा स्मोकिंग होती है और फीमेल्स के अंदर ज़्यादा स्मोकिंग होती है, तो क्या स्मोकिंग का ताल्लुक है, एसोसिएशन है जेंडर से, इस चीज़ को आप जज कर रहे हैं। अगर हम नॉमिनल डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल डेटा आता है। नो लीनियर रिलेशनशिप होती है इसके दरमियान। स्पेर्म एंस और ऑड्स रेशियो रिलेटिव रिस्क सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट और के एंड ऑल्स। न्यूमेरिकल लीनियर रिलेशनशिप के अंदर आपके पास पर्सनस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, साइन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो आपकी और रेशियो के तौर पे यूज़ होता है। बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि बेसिकली सिग्निफिकेंट टेस्ट क्यों यूज़ होते हैं और इन टेस्ट की
बेसिस पे आप किस तरह से अपने टेस्ट को, अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के आखिर में जो डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने आपसे डिफरेंट टेस्ट के हवाले से पूछा है उन्हें आप पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशंस अपने पास नोट डाउन करेंगे और उनको थोड़ा सा समझ के एंड देन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी है, इसके अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं और जो कि आपको कुछ समझनी भी है और सॉर्ट आउट भी करनी है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं। इसके अलावा बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड द काउंटिंग रूल्स, प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड लॉटरी प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अलावा इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आफ्टर दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड कंप्यूट इट इन अ गिवन सिचुएशन। सेकेंडली आप इसके अंदर ये समझ सकेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं प्रोबेबिलिटी की और किस सिचुएशन में किस तरह की प्रोबेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होती है। इसमें आप ये भी लर्निंग होगी आपकी कि डिस्टिंग्विश कर सकें आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। नेक्स्ट हम जो है वो इसके बाद डिस्टिंग्विश कर सकेंगे आप बिटवीन प्रीम्यूटेशंस में, कॉम्बिनेशंस में, एंड एबल टू कंप्यूट देम फॉर वेरियस इवेंट, एक्सप्लेन व्हाट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एंड स्टेट्स इज मेजर यूज़। इसके मेजर यूजेस को भी आप जो है वो स्टेट कर सकेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कंप्यूट कर सकेंगे प्रोबेबिलिटीज़ को बाय यूजिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंबल्स क्या होते हैं बायनोमियल टर्म के, इन सब चीज़ों को हम बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जैसा कि नाम ज़ाहिर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी इज़ समथिंग रिलेटेड टू द चांस ऑफ समथिंग। सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेज द स्पेसिफाइड इवेंट कैन अकर टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स दैट कैन अकर्स। इट अप्लाइज ओनली टू फ्यूचर इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिफाइन ये कर रहे होते हैं कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स को आप नीचे रखेंगे जो कि पॉसिबल है, जबकि फेवरेबल आउटकम्स को आप ऊपर रखेंगे जो कि आपको चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स वो हैं दैट यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, दैट यू आर एक्चुअली वांटिंग, एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो आप नीचे रखेंगे। लाइक बस आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो आप सेलेक्ट होंगे या नहीं सेलेक्ट होंगे। तो बेसिकली दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, तो वो आप नीचे लिखेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो हैं, यानी you can be selected one and you cannot be selected is two। तो टोटल दो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होने आप नीचे लगते हैं। और फेवरेबल आउटकम, फॉर एग्जांपल आपका फेवरेबल आउटकम ये है, यू वांट टू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, दैट यू विल पुट ऑन द नॉमिनेटर साइड, राइट। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। कॉइन है, जब आप उसे जो है व्हेन यू विल throw that coin in the air and you will see that how many chances of getting head and tails from that one coin is 2। there are two possible events and one event is head and the second event is tail। यानी कि अगर आप जब कॉइन को उछालते हैं तो दो इवेंट पॉसिबल हैं। एक पॉसिबल ये है कि हेड आ जाए और दूसरा पॉसिबल है टेल आ जाए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है तो 1/2, क्योंकि दो पॉसिबल इवेंट्स हैं दैट इज़ हेड एंड टेल, उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर दो कॉइन्स आप अगर टॉस करते हैं, दो कॉइन्स, नाउ यू आर यूजिंग टू कॉइन्स एंड यू विल थ्रो देम इन द एयर एंड देन देयर आर टू हेड्स एंड टू टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितने हेड्स आ सकते हैं और कितने टेल आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ दो कॉइन्स को जब आप हवा में उछालते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी हेड की, तो अब प्रोबेबिलिटी हेड की 2 हो जाती है और टेल की भी 2 हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हैं 4, यानी कि 2 हेड 2 टेल, ये 4 इवेंट है जो कि पॉसिबल हैं। उनमें से अगर आपके लिए फेवरेबल इवेंट हेड है तो कितने हेड पॉसिबल हैं 2, जबकि कितने टेल पॉसिबल हैं, डेट इज़ ऑल्सो 2। तो इसके अंदर आपके पास HT, TH, TT या HT की पॉसिबिलिटी है और H2 शो करता है मीन्स हेड्स ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल्स ऑन सेकेंड। देयर आर टू हेल्पफुल फोर वेज टू इंश्योर दैट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर लिस्टेड। आप इसे ट्री डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि T और H दो पॉसिबल, T और H
और टी और एच, इस तरह से आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ का आ जाता है। सेकंड कॉइन है, फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन के अंदर आपके पास हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और सेकंड कॉइन और फर्स्ट कॉइन दोनों के अंदर एक एक हेड आ सकता है, एक टेल और हेड आ सकता है, जबकि टेल आ सकता है और टेल हेड हेड टेल आ सकता है। चारों इवेंट आपके पास पॉसिबल है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड, नो हेड्स 1 हेड एंड 1 हेड। यानी कि आपके पास जब आप एक 2 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो क्या चांस है आपके पास कि सिर्फ एक हेड आए, कोई हेड आई ना, एक हेड आए और एक टेल आए, या फिर 2 हेड्स आए। तो नॉट मोर देन 1 टेल, वी कैन टेबुलेट द आंसर एज फॉलो। सबसे पहला हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी 2 हेड की क्या है, 1/4 इज इक्वल टू हेड और हेड। हेड और हेड यानी कि 2 हेड होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2h 2 हेड होने के लिए 1/4 4 साइड में से, और डबल एच होने की पॉसिबिलिटी p एटलीस्ट 1h, यानी कि एक एच होने के चांस क्या हैं, HT TH HH। इसी तरह से POH होने के चांसेस क्या हैं, टेल टेल होने के चांसेस 1/4। P 1H एंड 1T यानी कि एक हेड और एक टेल होने के क्या चांसेस है, 2/4। P नॉट मोर देन 1 टेल, एक टेल, एक से ज़्यादा टेल ना होने के चांसेस क्या हैं, 3, हेड टेल टेल हेड और हेड हेड। एग्जाम्पल 3 में अगर आप एक डाइस लेते हैं, उसे रोल करते हैं और फिर उसमें पॉसिबल कितने इवेंट्स हैं, 6 पॉसिबल इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपसे सवाल ये किया जा सकता है एंड द आंसर इज, डिफरेंट तरह से सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि डाई के अंदर P1 के चांसेस 1/6 हैं, यानी कि एक हर 6 में से मतलब यानी कि 1/6 है, 2 1/6 है, 3 1/6 है। इवन नंबर कितने पॉसिबल हैं, कितने इवन नंबर हैं, 2 4 और 6, तो 3/6। इसी तरह से 2 और 3 आना कितना पॉसिबल है, 2 और 3 दो चीज़ें हैं, तो 2/6। ग्रेटर देन 3 3 से बड़े 3 नंबर हैं, 4 5 एंड 6, तो इसलिए 3/6। इसी तरह अगर हम ये पूछ लें कि स्मॉलर देन 3 के कितने चांसेस हैं, तो अगेन वो भी 2 चांसेस बन जाएंगे, यानी कि 1 एंड 2, तो यानी कि 2 आ जाएगा। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ER इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, दैट इज इफ वन इवेंट हैपन्स द अदर इवेंट कैन नॉट हैपन। हमने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ER इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि एक वक्त में वो दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ नहीं होगी। दस इन द 1 कॉइन एग्जाम्पल, 1 कॉइन के एग्जाम्पल के अंदर E1 हेड है एक्सक्लूसिव इवेंट और E2 टेल है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये इसलिए हैं क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज़ हो सकती है और इनकी प्रोबेबिलिटी अप टू 1 होती है। डोनेटेड सिम्बॉलिकली द बेसिक 3 प्रॉपर्टीज और प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 एंड सो ऑन। वो सारे एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से कि उनका एक दफ़ा होना, एक वक्त में होना पॉसिबल नहीं है। P नॉट E1 यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी जिसमें E1 नहीं है तो इज इक्वल टू 1, तो आपकी इक्वेशन बनती है 1 माइनस PE1 वेयर E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। E1 और E2 इसके अंदर इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं। Where E1 E2 are mutually exclusive outcomes, A minus A is equal to complement of event A. It will become the complement of event A. Conclusion: by pursuing our example, you can see that the probability of event is always between 0 and 1. Probability हमेशा 0 और 1 के दरमियान है। Probability बना दी या तो होगी 1, नहीं होगी डेट 0, इज़ नेवर नेगेटिव, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, या फिर ग्रेटर दैन 1 नहीं होती। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल म्यूचुअली तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। एंड 3 तीसरा पॉइंट ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E1 नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी E1। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 के बराबर है E1 का ना होना, अकर ना होना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इवेंट E इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट A। इवेंट A जो है वो कॉम्प्लीमेंट है इवेंट A का। एज शोन इन फिगर वी ऑब्जर्व दैट PA इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स इन A, यानी कि एक इवेंट है A, उसके अंदर 6 सेट पॉसिबिलिटीज़ है डाइस की सूरत में, और दूसरा आपके पास है कॉइन। तो PA बेसिकली सम होती है प्रोबेबिलिटीज़ का जो कि आउटकम्स हैं A के अंदर, माइनस PA इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स A एंड PA प्लस PA इज इक्वल टू 1। PA बराबर है PA के, इसलिए PA इज इक्वल टू 1, PA 1 माइनस PA के बराबर है।
इक्वेशन आपके समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि इवेंट ए इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट है इवेंट ए का, एज शोन इन फिगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स इन ए माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम इन ए, तो पी ए प्लस पी ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। प्रोबेबिलिटी रूल्स फॉर कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी यूज़ किया है। टू इंडिस्पेंसिबल रूल्स हेल्प आंसर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कंसर्निंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट्स, दोज कंपाउंड्स ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इवेंट, जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल इवेंट पे, उसे हम कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। दीज आर मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशनल रूल, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल है और एडिशन रूल है इनके लिए। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अकियरेंस ऑफ वन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चांस ऑफ अकियरेंस ऑफ द अदर, द आउटकम्स ऑफ रिपीटेड। अच्छा, इसके अंदर ये है कि एक की अकियरेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। नेक्स्ट आ जाता है टॉसेस ऑफ कॉइन इलस्ट्रेट इंडिपेंडेंट इवेंट बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ वन टॉस डज नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ एनी फर्दर फ्यूचर टॉस। जैसे टॉसेस हैं, अगर आप एक या एक से ज़्यादा कॉइन, 2 से ज़्यादा है, एक कॉइन को अगर आप करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें जो है वो पॉसिबल होंगी, या तो हेड पॉसिबल होगा या टेल पॉसिबल होगा, और दोनों इवेंट में से एक चीज़ हो सकती है और एक चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉइन्स यानी कि 2 से ज़्यादा कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो एक कॉइन के अंदर जो चीज़ आई है उससे दूसरे कॉइन का होना ज़रूरी नहीं है, कोई एसोसिएशन होना ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर एक कॉइन में हेड आ गया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉइन में हेड नहीं आएगा, चांस है कि दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, या एक कॉइन में टेल आ गया तो दूसरे में टेल नहीं आ सकता। इट इज़ पॉसिबल कि हेड आया हो और दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर पहले में हेड आया तो दूसरे में भी हेड आ जाए। Because of the outcome of one toss doesn't affect the outcome of any future toss. Not that independent and mutually exclusive are not the same. वेरी क्लियर है कि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों सेम नहीं है। इंडिपेंडेंट के अंदर जैसा कि मैंने कहा कंपाउंड इवेंट भी कहलाता है, ये 2 चीज़ों का आप करते हैं तो दोनों का रिजल्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। द अकियरेंस ऑफ वन इंडिपेंडेंट इवेंट डज नॉट अफेक्ट द चांस ऑफ अनदर सच इवेंट अकरिंग एट द सेम टाइम, वेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। इट्स वेरी सिंपल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आप एक कॉइन की बात करते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी कहलाती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है, जबकि ये इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिविटी कहलाएगी उस वक्त जब आप 2 कॉइन्स फ्लिप करते हैं। टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकियरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स वी यूज़ द मल्टीप्लिकेशन रूल। इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन रूल को यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। द मल्टीप्लिकेशन रूल स्टेटेड्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकियरेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ symbolically PA and B is equal to PA PB, where A represent the word and। probability A and B की क्या है? PA भी हो सकता है, PB भी हो सकता है, और बेसिकली ये आपका वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड को। Example 4, in tossing 2 coins, what is the probability that a head will occur? अगर आप 2 coins को flip करते हैं या toss करते हैं तो क्या probability है कि head आएगा? Both on the that a head will occur both on the first coin and on the second coin। क्या चांस है कि दोनों coins के ऊपर head है, पहले कॉइन के ऊपर भी और सेकंड कॉइन के ऊपर भी? तो PH1 एंड H2, तो PH1 H2 इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि हाफ पहले कॉइन के अंदर हाफ चांस है, दूसरे कॉइन के अंदर भी हाफ चांस है। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, तो 4 वो चांस है कि दोनों कॉइन के ऊपर जो है वो हेड है। नेक्स्ट है, बहुत सारी एग्जांपल्स है। सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिपिकल ड्राइवर विल हैव एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इज़ 1/10, यानी कि एक टिपिकल ड्राइवर के पास एक चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो सकता है हर 10 में से 1 में। What is the probability that 2 randomly selected drivers will both have an accident during the year? The solution is equal to 1/10, 1/10 is equal to 1/100. Conditional probability, calculating the probability of event using in the denominator a subset of all possible outcomes will give in a conditional probability। आपकी जो conditional probability है उसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो एक इवेंट की जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो तमाम सबसेट पॉसिबल वैल्यूज़ के साथ होता है। फॉर एग्जांपल, एक कम्युनिटी है जिसमें 4051 वुमेन हु स्मोक, जिसमें से 4075 औरतें स्मोकिंग करती हैं, वो सब प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आउट ऑफ दीज 768 स्टॉप
स्मोकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। टोटल 4075 वुमेन में से, जो कि दोज 4075 वुमेन who are pregnant and also are smoking now, among them 768 has stopped smoking because of the educational program. Out of all pregnant women who smoke, 884 have 16 years of education. इसके अलावा वो तमाम औरतें जो कि स्मोकिंग कर रही हैं, उनमें से 884 वुमेन वो हैं जिनकी 16 इयर्स की एजुकेशन है। अमंग द एजुकेटेड वुमेन 214 स्टॉप स्मोकिंग, और जो एजुकेटेड वुमेन है उनमें से 214 ने स्मोकिंग रोक दी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमेन विथ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन स्टॉप स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो औरतें जो उनकी एजुकेशन 16 इयर्स की है, उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो स्मोकिंग छोड़ दी? टोटल 405 वुमेन थी जो कि प्रेग्नेंट भी थी, जो स्मोकिंग भी कर रही थी। उनमें से पहले 768 ने किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत छोड़ी है, और 886 ऐसी औरतें हैं जिनकी 16 इयर्स की एजुकेशन है। उन 16 इयर्स की ख़वातीन में से 214 ऐसी हैं जिन्होंने स्टॉप कर दी स्मोकिंग। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखेंगे सबसे पहले कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, गौर से देखेंगे। मदर्स ऑफ लाइफ बोर्न इंस्टेड स्टॉप इसमें। सबसे पहले स्मोकिंग 0 to 11 ईयर्स परसेंटेज का बन रही है, 12 ईयर्स, 13 to 14 ईयर्स, 16 ईयर्स टोटल हमारे पास स्टेटस ये है कि स्टॉप्ड 42, 0 to 11 में से 42 ने स्टॉप कर दिए, 9.57%। 12 ईयर्स में से जिनकी 12 ईयर की एजुकेशन उन्होंने 308, 13 to 15 वाली 204 और 16 ईयर्स वाली 214, तो टोटल हैं 242। डिडन स्टॉप में से 390 हैं, 1515 हैं, 735 हैं, 78.2 हैं और 75.8 है। टोटल जो है वो हमारे पास आ गई है 0 to 11 ईयर्स एजुकेशन वाली 432, इसी तरह से सो ऑन करते हुए 40। ये एक सर्वे है 1980 का जिसकी आपको एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल को आप देखते हुए इसको देख सकते हैं कि टोटल कितनी % औरतों ने छोड़ दी स्मोकिंग। Now there are several probabilities inherent in this scenario. What is the probability that a woman stops smoking? उसे हम इवेंट है A कहेंगे। B क्या है? What is the probability of a woman having 16 years education? वो औरतें जिनकी 16 years की एजुकेशन है वो इवेंट B कहलाएंगी। P, A and B क्या होगा? What is the probability that a woman with 16 years education stop smoking? वो आपका इवेंट C कहलाएगा। Probability of stopping smoking among all women of 16 years of education. Total number of women of 16 years education 884 हैं। Number of total women of 16 years education जिन्होंने stop कर दी थी smoking वो 214 थी। Probability क्या है? Total educated 884 हैं, 214 यानी कि वो जिन्होंने smoking avoid कर दी है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो probability क्या आएगी हमारे पास? 0.242, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए 768 जो है वो उनमें से डिवाइड करेंगे 4075 को, टोटल से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.118 आएगा। जबकि वो जिन्होंने स्टॉप कर दी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग विद हैविंग एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ 16 ईयर्स इज 0.242। The value 0.11 is the value of simple probability and 0.2 is the value of a conditional probability। जो 0.188 है वो प्रोबेबिलिटी है उसकी, जिसके अंदर हमने सिंपल कहा था कि टोटल औरतें हैं 4078, उनमें से सब ने में से जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी स्मोकिंग छोड़ी थी वो टोटल नंबर था और वो टोटल एक सिंपल था। लेकिन अगर हमने जब कंडीशन रख दी कि वो कितनी है जिन्होंने 16 ईयर्स तक की तालीम भी हासिल की है, तो वो हमारा आ गया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप जनरेट करते हैं P/A/B से। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट A अकर्स गिवन दैट B हैज़ अकर्ड। इसमें ये हो सकता है कि A तब हुआ है जबकि B मौजूद था। एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग रेशियो PA/B इज इक्वल टू PA एंड B प्रोवाइडिंग PB इज़ नॉट इक्वल टू 0। B बराबर नहीं है 0 के। द वर्टिकल लाइन PAB इज़ रीड गिवन। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को हम सिर्फ आपको बता देंगे एंड देन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। फ्रॉम द डेटा ऑन स्टॉपिंग स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गिवन इन द टेबल 5.2 वी कैन कैलकुलेट सेवरल प्रोबेबिलिटीज़। हम कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज़ द इवेंट ऑफ स्टॉपिंग स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बी इज़ दैट मदर्स हैव 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, देन प्रोबेबिलिटी ए क्या है 768 डिवाइड बाय 4075 इज इक्वल टू 0.11 is the probability of selecting another who has stopped smoking, the probability of selecting a woman who has 16 years of education।
उसकी वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मदर हु हैज़ स्टॉप स्मोकिंग एंड हैज़ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर ये है कि वो जो 214 औरतें थी टोटल 4075 में से जिन्होंने स्टॉप कर दी थी स्मोकिंग और जिनकी 16 ईयर्स की एजुकेशन थी। The conditional probability of stopping smoking during pregnancy given that the mother has 16 years of education can be obtained using the formula. फार्मूला ये वाला यूज़ कर सकते हैं, PA&B is equal to 0.525, PB is equal to 0.2169. Note that the probability obtained using equation 5.6 PA upon B is equal to 0.242 is the same as the obtained directly. यानी कि वो औरतें जिन्होंने टोटल स्मोकिंग छोड़ी थी वो 884 हैं, उनमें से वो जिनको एजुकेटेड थी वो 214 थी, या 214 वो थी जो कि एजुकेटेड भी थी और जिन्होंने 16 ईयर्स की एजुकेशन के साथ स्मोकिंग छोड़ी, और 884 टोटल नंबर ऑफ वोमेन है जो कि 16 ईयर्स की एजुकेटेड है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी 0.242. Let us consider the difference between PA and P&B. PA gives the probability that event A occur out all possible outcomes, whereas PAB gives the probability that event A occurs given that we restrict ourselves to a subset B of all possible outcomes whose probabilities are not the same. यानी कि हम ये कंसीडर करते हैं कि जो डिफरेंस PA और PA/B में क्या डिफरेंस है। PA इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A अकर, तमाम आउटकम से PA को जब हम देख रहे होते हैं तो हम उसे PA कहते हैं, जबकि PAB गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A अकर्स गिवन दैट वी रिस्ट्रिक्ट आवर रूल टू अ सबसेट ऑफ B। वो तब होगा जब हम अपने सबसेट ऑफ B के साथ भी अपने रूल को स्ट्रिक्ट करेंगे, तो फिर जाके PA/B आता है। अनलेस द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जब तक कि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, द जनरल रूल दैट परमिट अस टू मेक अ सच अ स्टेटमेंट इज इवेंट A and B are independent if A/B is equal to PA. For example 6, we can see that the events A and B are not independent because यानी कि इवेंट A और B हमारे वाले केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना पॉसिबल नहीं है। लाइक PA/B is equal to 0.242 does not equal to PA is equal to 0.1188. A modification of example 3 illustrate how can we check whether event A and B are independent. हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इवेंट A और B इंडिपेंडेंट हैं। इफ़ A इज़ द इवेंट ऑफ एन इवन नंबर, अगर A एक इवन नंबर का इवेंट है ऑन द टॉस ऑफ अ फेयर डाई, एंड B इज़ द इवेंट दैट वी कंसीडर ओनली द फर्स्ट 4 नंबर्स, और B ये कहता है कि हम सिर्फ फर्स्ट 4 नंबर को डाई के यूज़ कर सकते हैं, दैन द टू इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर प्रोबेबिलिटीज़ आर इक्वल। PA is equal to 3/6 and 1/2 and PAB is equal to 2/4 is equal to 1/2। उनके अंदर यही है कि हमने थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट भी किया है और दोनों के अंदर ये देखना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है या नहीं। एडिशनल रूल पे आ जाते हैं, टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वन और अनदर इवेंट बट नॉट नेसेसरी बोथ विल अकर। ये देखना है कि दोनों इवेंट, एक या एक से ज़्यादा इवेंट हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो सकें। यूज़ द एडिशन रूल। द एडिशन रूल स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A और इवेंट B और बोथ विल विल अकर equals the sum of the probabilities of each individual event minus the probability of both, symbolically PA or B is equal to PA plus PB minus PA and B. Reason क्या है subtracting P and B is that this portion would otherwise be included twice. Otherwise ये portion 2 दफ़ा include हो जाएगा. As you can see in figure 5.3 which is an example of Venn diagram. In such a diagram, circles within a rectangular space represent events and the relationship between those events is indicated by either a separation or an intersections of the circle. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल होती है तो उसके बीच में जो वैल्यूज़ आती है वो दोनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। The area excluding A is denoted by a bar over it. The area of not A or B is denoted by as AB. आपको खुद वेन डायग्राम्स के ज़रिए जो है ना इसको करना है। इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपको वेन डायग्राम नज़र नहीं आ रही है। इन फ्लिपिंग टू कॉइन्स यू मे विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन H1 और नॉट और ऑन बोथ H1 H2 टू गेट द आंसर। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, PH1 इज इक्वल टू और H2 के 1/2 चांसेस हैं, प्लस 1/2 चांसेस हैं, प्लस 1/4 चांसेस हैं एंड देन 3/4 चांसेस हैं। अगर आप दैट यू व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ऑब्टेन अ 3 और 4 ऑन द टॉस ऑफ अ डाई, इस एग्जांपल को आप देखेंगे और खुद इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। हमने एग्जांपल तो आंसर के साथ दी हुई है।
वो आपको ये रिवाइज करना है, ये रिव्यू करना है कब इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. By tossing a 3, you have excluded the probability of tossing a foil. Likewise, you cannot simultaneously get a head and a tail with one coin flip. ये सिंपल सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस की है. एक फ्लिप करने से कॉइन को आप एक वक्त में ना हेड हासिल करते हैं, हेड और टेल दोनों हासिल नहीं कर सकते. इज द एडिशन रूल इज समवॉट सिंप्लीफाइड व्हेन द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसलिए एडिशनल रूल बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है जब आप एक्सक्लूसिव इवेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. तो रूल है पी ए और बोथ, पी ए और बी और बोथ इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. एग्जाम्पल 9 आपको करनी है. एट बर्थ यूएस फीमेल की प्रोबेबिलिटी के हवाले से एग्जाम्पल को आपको खुद रीड करना है, समझना है, रिव्यू करना है, उसे सॉर्ट आउट करना है. इसी तरह से एग्जाम्पल को फर्दर देखते हुए आपको इसे सॉल्व करना है. मेल और फीमेल के हवाले से है ये, और इसके अंदर टोटल जो है लाइव बर्थ और काफ़ी डिटेल एग्जांपल है. इसको आपको रिव्यू करेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. इसी तरह से काउंटिंग रूल्स क्या होता है. इन कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स वी फर्स्ट नीड टू नो इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज सच इवेंट्स कैन अकर. फॉर एग्जांपल, इफ वी विश टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स एंड अ बॉय इन अ 3 चाइल्ड फैमिली, इट इज़ इनिशियल टू नो द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स एंड अ बॉय. अगेन ये काउंटिंग रूल्स को आप देखेंगे, इनको किस तरह से हम करेंगे. सिंपल सी बात है कि 2 गर्ल हैं या 1 बॉय है तो क्या चांसेस हैं कि बॉय हों गर्ल्स हों. ये सब प्रोबेबिलिटी के हवाले से. ये तो ऐसा डिटेल टॉपिक था. इसके अंदर बेसिकली हमें जो आपके लेवल पे जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. इसके अलावा आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी और म्यूचुअल इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इन सबको आप डिफ़ाइन करेंगे. और ये जो आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं इन्हें आप खुद से भी एक दफ़ा रिव्यू करके सॉर्ट आउट करेंगे, इन्हें देखेंगे, वेन डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे. और फिर इंशाल्लाह इसके साथ ही हम वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को. होपफुली आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई हों. एंड दिस प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड बाय यू. यू हैव टू go through the examples and you have to sort it out yourself. At the end of the day you should know the probability क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं. इन सब चीज़ों की आपको डेफिनेशन और इनकी थोड़ी एग्जांपल्स किस तरह से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज जो है वो चल रही है, और इसके अंदर तारफी वीडियो के अंदर आपको हमने बताया कि आपने जो 2 लेक्चर्स को स्टडी करना है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी और सिग्निफिकेंस टेस्ट के हवाले से जो है वो बात थी. तारफी वीडियो के अंदर आपको जो है वो उसको मुख्तसरन समझाने की कोशिश की थी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो किसको कहते हैं और सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है. इसके बाद उम्मीद है कि आपने जब दोनों लेक्चर्स सुने होंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इस सिलसिले में. चूँकि आप समझते हैं कि हम स्टैट के हवाले से, बायोस्टैट के हवाले से बात कर रहे हैं, और जो भी हम रिसर्च करते हैं मेडिसिन की फील्ड के अंदर, वो चाहे किसी न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी के हवाले से हो या मेडिसिन के इफ़ेक्ट के हवाले से हो कि हमारी फ़लाँ दवाई जो है वो मरीज़ पे असर करती है या नहीं करती, या हम फ़लाँ बीमारी का इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस सब का हमने डाटा इकट्ठा करना होता है. और इस डाटा को इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर स्टैट अप्लाई करके, मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करके, और उसके रिजल्ट से हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि आया ये हमारी रिसर्च जो हम कर रहे हैं या जो दवाई हम दे रहे हैं या हम जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि हमारी ये दवाई जो है वो मरीज पे असर रखती है या नहीं रखती, तो इसको हम स्टैट अप्लाई करके रिजल्ट्स की फॉर्म में जो है वो फिर बताते हैं, और इसको फिर जो है वो इंटरनेशनली जो है वो माना जाता है आपकी रिसर्च को भी. तो हमने डाटा के ऊपर हमेशा जो है वो स्टैट अप्लाई करनी होती है. तो ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसका ताल्लुक बायोस्टैट से है, और चूंकि आप रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं तो ये सारा जो है वो स्टडी डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये सारा बायोस्टैट के हवाले से लेक्चर सीरीज चल रही है. और यकीनन इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल जो है वो आ रही होगी, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बल्कि कुछ नहीं, अक्सरियत के ये नया सब्जेक्ट हो सकता है. कुछ लोगों ने इसको पहले भी जो है वो पढ़ा होगा.
तो बात यह है कि आप जितनी दफ़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे उतनी दफ़ा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से क्लियर होते चले जाएंगे। हमने प्रोबेबिलिटी की जो है वो एग्जांपल दी थी, तो हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमारे जो चांस हैं वो कितने हैं कि हमारी कितने परसेंट चांस हैं कि हमारी जो दवाई है वो मरीज पे असर कर रही है या नहीं कर रही। तो पॉसिबिलिटी क्या मतलब कि इतने परसेंट, हाँ हमें जो है वो पता है कि इतने परसेंट पॉसिबिलिटी है कि हमारी दवाई जो है वो मरीज पे असर करेगी, तो इसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैं एक और सादा एग्जांपल से आपको जो है वो समझाने की जो है वो कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जो लूडो जो है वो खेलते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एक डाइस होता है। उस डाइस के ऊपर जो है जो लूडो का दाना होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर जो है वो उसके अंदर होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है वो डिज़ाइन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि ये 1 से 6 तक जो है वो नंबर हमने जब लूडो का दाना फेंकना है तो इसमें 1 से लेकर 6 में से ही किसी नंबर ने जो है वो आना है। तो हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये कितने परसेंट चांस है कि 2 नंबर जो है वो आएगा, तो वो उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश करें, जैसे आपने वीडियो के अंदर फार्मूला देखा कि हमने ये देखना है कि कितने परसेंट जो है वो चांस है कि हमारा जो है वो 2 आएगा। तो चूंकि हम 1 वैल्यू को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो हम 1/6 करेंगे, तो ये हमारे पास जब इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से जो है वो हमें पता चलेगा कि 16.6 समथिंग जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 16% चांस है कि जब हम लूडो का दाना घुमाकर फेंकेंगे तो वो 2 आएगा। ठीक है, सारी बात है, चूंकि टोटल 6 हैं, इससे हम 6 से बाहर जा नहीं सकते। कोई यूनिक नंबर हमारे पास जो है वो आ नहीं सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। हमारे पास टोटल वैल्यू 6 तक ही है, या 1 ने आना, या 2 नहीं, या 4 नहीं, या 6 ने। तो इस हवाले से हमें जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि 16% जो है वो चांस है कि 2 नंबर आएगा, और बाकी भी प्रोबेबिलिटी इसी हवाले से जो है वो निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी के बाद हमने जो है वो बात की थी सिग्निफिकेंट टेस्ट की। देखिए, जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उसका हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसमें कार स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, 1 टेल 2 टेल टी टेस्ट है, और मुख्तलिफ तरह के टेस्ट जो हैं वो एनोवा है, 1/2 एनोवाज है। ये टेस्ट जो है वो हम अप्लाई करते हैं, हम अपने डाटा के ऊपर हम अपने रिजल्ट जो है वो फाइंड करते हैं, जिसमें से जो सबसे अहम चीज़ है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने जैसे तारफी वीडियो में बात की थी कि इसको जो है वो 0.05, जिसको हम पी वैल्यू भी कहते हैं, पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसकी जो है वो 0.05 वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड रखी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है आपने 0.05 ही रखनी है। 0.05 का मतलब है 5%। ठीक है, और आप डिजाइन करने से पहले ये सोच लेते हैं कि आपने 5% रखनी है या 1% रखनी है। तो अगर आपने 1% रखी है तो पी वैल्यू हमारी होगी 0.01, और अगर हमने 5% रखा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो वो होगी 0.05। मतलब ये 5% और 1% का मतलब ये है कि 5% हमारे पास चांस है कि हमारी जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं जिसके ऊपर हम डिसीजन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक जो है वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर पी वैल्यू की बेस के ऊपर हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इस तरह से मिसाल दूं कि हमारे पास जो है वो एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और हम ये एक जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस। हम कहते हैं कि क्लास की हाजिरी का और बच्चों के रिजल्ट का आपस में कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। तो ये होगी हमारी नल हाइपोथेसिस क्लास में, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। जो क्लास की हाजिरी और बच्चों का रिजल्ट है ये बिल्कुल एक दूसरे से जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारी जो है वो नल हाइपोथेसिस है। सेकेंड जब हम बात करते हैं तो वो है जी हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि हम ये कहते हैं
कि हमारा जो स्टूडेंट्स की हाजिरी है और जो रिजल्ट है ये एक दूसरे पर इफेक्ट रखते हैं। अब हमने दो हाइपोथेसिस बना ली है। एक ये है कि बच्चों की हाजिरी का और रिजल्ट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये नल हाइपोथेसिस है। एक ये है कि बच्चों की हाजिरी का और रिजल्ट का आपस में ताल्लुक है, ये हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो जब हम इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं और हम अपनी पी वैल्यू है और रिजल्ट है इसका आपस में ताल्लुक है, तो यूं रिसर्च की पी वैल्यू जो होती है, जो हमारे डाटा की पी वैल्यू होती है, जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा होता है, हम ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली प्रोबेबिलिटी ही है, आप इसको समझ लें कि ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी बेस के ऊपर हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो बात है ये समझ आई होगी और मामला को लेक्चर को समझने में थोड़ी सी आपको आसानी हुई होगी। यकीनन मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन हर काम जो है उसको सीखा जाए प्रॉपर वे में तो वो आपको आ ही जाता है। तो जब आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम सुनेंगे और खुद से इसको समझने की और डाटा को मटीरियल को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको जो है वो समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो तमाम अतिबा कराम है वो यकीनन इस जो प्रेसिडेंट सीपीडी प्रोग्राम है इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और आप ये ज़रूर इससे जो है वो फ़ायदा हासिल करें और इस इल्म को जो है वो खुद भी लें और अपने जो जूनियर्स हैं, अपने जो फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अतिबाई किराम, मैं हकीम अब्दुल करीम नासर, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब और पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस की मरकजी क़यादत की ये विजन है कि अतिबाई किराम की तिबी और इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाया जाए, इनकी महारतों में इजाफा हो, इनकी इल्मी इस्तेदाद में इजाफा हो, इनके पास कदीम तिब्बी मालूमात के साथ साथ जदीद मालूमात भी हो, ताकि वो बेहतर अंदाज में दुखी इंसानियत की खिदमत कर सके। आप लोग बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस मोहतरम हकीम इकबाल अहमद करशी की क़यादत में शब रोज़ कोशान है कि पाकिस्तान में तिबी तालीम के मेयार को बुलंद किया जा सके और मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब के जितने भी अराकीन हैं उनकी अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस से है और अतिबाई बलूच पाकिस्तान ने इस मुल्कीर तिबी तंजीम पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस को इसलिए मैंडेट दिया है कि वो तिब के मेयार को बढ़ाए और तिब को बैन अक़वामी तौर पर वो मकाम दिलवाए जिनके वो मुस्तहिक़ है। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारी मौजूदा कौंसल, जिनकी सदर जनाब मोहम्मद अहमद सलीमी साहब है, उन्होंने इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए भरपूर इक़दाम शुरू किया। इनमें से सबसे नुमायां प्रोग्राम हमारा CPD प्रोग्राम है। मैं आप तमाम शुरका को, तमाम अतिबाई किराम को इस 11वीं प्रोग्राम में या क्लास में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि आप इसमें भरपूर शिरकत करें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं, आप अपनी मालूमात में इजाफा करें,
अपनी इल्मी इस्तेदाद बढ़ाएं ताकि आप इस मुकाबले के दौर में अंग्रेजी माहिरीन फ़न का बखूबी मुकाबला कर सकें। आपको पता है कि हमारा तिब एक फितरी तरीक़ा इलाज है। आपको पता है कि ये तरीक़ा इलाज हज़ारों साल से तुकी इंसानियत की खिदमत में मशगूल है और आप बखूबी जानते हैं कि ये तिब अपने खूबियों की वजह से, अपने इफादियत की वजह से अभी तक जिंदा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाएं, इसका हिस्सा बने और आखिर तक इसको जारी रखें। और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब की मौजूदा जो अरकान है उनका ये विजन है कि वो आपके लिए, वो तिब और तबीब की बेहतरी के लिए और दुनिया इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात एक करके वो मसरूफ़ अमल है। मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मौजूदा सदर और इस प्रोग्राम के जो असातिज़ा किराम हैं, जिसमें डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, मोहतरमा डॉक्टर हलीमा नज़र साहिबा, तबीबा राबिया महमूद साहिबा और दीगर अरकान, और ख़ास करके हकीम जुल्फ़कार ज़ाहिद साहब है और सदर साहब है। इसमें इनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये प्रोग्राम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको अमली जामा फैलाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा है। तो मैं इस पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में जो कौंसिल के फ्यूचर प्लान है तिब की तरक्की और बहबूद के लिए, उसमें भी तमाम अतिबाई किराम शामिल होंगे और हमारे तमाम प्रोग्रामों को कामयाब बनाएंगे और इंशाअल्लाह हम जदीद दौर के तकाज़ों से अपने अतिबाई किराम को आगाह करते रहेंगे और इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी इल्मी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेंगे। जितने भी वसाइल है हमारे पास इंशाअल्लाह वो तिब और तबीब की बेहतरी के लिए बरोकार लाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं आखिर में एक बार फिर इस प्रोग्राम की टीम और उन शुरका को जो इनमें शरीक है उनको मुबारकबाद देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।